Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read class 12th history, chapter 6, theme 6, Bhakti Sufi tradition, changing religious beliefs and devotional text from 8th to 18th century AD. That is very important chapter. In this chapter, we are going to read about what is the meaning of bhakti and what is the meaning of Sufi and what is their impact on Indian society. One most important thing is that in this chapter, what we read, that is how can it emerge in the very vast level in India. Here I clarify that bhakti, that is not a new tradition in India. It was very early, but especially 7th to 10th century, 7th to 15th century, it was developed in the very high level because of the circulation of Islam, expansion of Islam in India. And as you know that there are so many extreme practices also adopted in the Brahmanical text, Brahmanical religion. So it is the time when the social reformer changed the unnecessary practices which is running on in the Hindu religion or Vedic religion. Bhakti Sufi traditions. We have also discussed the various temple architectures, buildings in our previous chapter, chapter 4, where we have seen that the mid first millennium CE on the Indian landscape we have seen where there are so many types of building architecture on the Indian continent was dotted with the variety of religious structure. We have discussed about stupa, we have discussed about the various temple architecture, we have discussed about that some monuments. If these typified certain religious beliefs and practices, other have been reconstructed from the textual traditions. Dear student, it is very easy to understand that what we are going to read, especially 7th to or 8th to 18th century in on the Indian continents. अगर we have detailed, we have minutely observed about the social condition, cultural condition of India, then undoubtedly we can say that there were so many changes in the especially the social condition, especially the religious condition. The religion and their practices आसान हो गए वो लोगों को समझने के लिए, लोगों को उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, लोगों को उसको स्वीकार करने में जो जो कठिनाइयाँ थी, जो मजबूरियाँ थी, इन धार्मिक समाज सुधारकों ने उसमें काफ़ी बदलाव किया। अध्याय 4 में, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा कि किस तरीके से मिड फर्स्ट मिलेनियम सी में भारतीय उपमहाद्वीप में कई सारी इमारत, स्तूप, विहार, मंदिर दिखाई देते हैं आपको। इन इमारतों में किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरणों को किया जाता रहा होगा, उनका प्रयोग इस बिल्डिंग आर्किटेक्चर में होता होगा। आई मीन टू से दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ religious practices was happening in this type of structures like stupa, like monuments, like monasteries, like temple also. इनका एक किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया होगा। धार्मिक विश्वास और आचरण के प्रतीक के रूप में समाज के सामने दिखाई दें।
वहीं अन्य धार्मिक विश्वास का पुनर्निर्माण हमें साहित्यिक परंपराओं से दिखाई देता है। ये साहित्यिक परंपराएं पुराण के आधार पर भी, ये साहित्यिक परंपराएं वेदों के आधार पर, ये साहित्यिक परंपराएं कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट के आधार पर, बौद्धिज्म और जैनिज्म के साथ साथ अन्य जो रिलीजियस सेक्ट्स थे उनके आधार पर जो किताबें लिखी गई उनके आधार पर भी हमें भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस की तमाम डिटेल्स प्राप्त होती हैं। 8 to 18 सेंचुरी का समय अगर स्पेशली देखें तो नए साहित्यिक या लिटरेचर और कवियों की रचनाएं, हाइम्स, प्रेयर्स लिखने का टाइम था। बहुत सारी बुक लिखी गई, किताबें लिखी गई। संत कवियों ने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल न करके फोक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में वारकरी और धारकरी संप्रदाय के कवियों ने, संत कवियों ने मराठी भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में भक्ति को व्याख्यायित किया। असम में शंकरदेव जैसे 15वीं सदी में, असमिया में, बांग्ला में चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त उत्पन्न हुए। देश के विभिन्न प्रांतों में, कर्नाटक में आप करेकलम यार को देखेंगे, तमिलनाडु में अंडाल को देखेंगे। अलवार संत और नयनार संतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इट मीन्स ऑन द इंडियन कॉन्टिनेंट लेवल वी हैव सीन इन द वेरियस रीजन्स द वेरियस भक्ति सेंट्स, Bhakti poets, they compile the various texts. They try to easy the path of the religion and their practices for the common people. This is also very important. They minutely observe about that the problem of the society, problem of the casteism, problem of the discrimination, and they try to solve this. They try to give some very important solution, and that was only and only bhakti. I also clarify you that bhakti was not the new tradition in India. It was very early, but when Islam entered in India, it was mobilized in the very high way, the huge amount, or we can say that एक नया स्वरूप भक्ति को मिला, एक नई ताकत मिली जब भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ, इस्लाम के लोग आए, मुस्लिम्स आक्रांता आए और भारतीयों को एक चुनौती मिली। भारतीयों ने भक्ति को एक नए तरीके में, नए स्वरूप में, आसान स्वरूपों में करने का प्रयास किया। जो संत कवियों ने रचनाएं की, जो मौखिक रूप से अपने को व्यक्तव्य किया, अपने को व्यक्त किया, वो रचनाएं अधिकतर संगीत के रूप में होती थी, गीत के रूप में होती थी। और संत के जो फॉलोअर्स थे उनकी मृत्यु के बाद उनको उनके सारे जितने प्रे थे, हाइम्स थे, पोएम्स थे, सभी को कंपाइल करके एक टेक्स्ट का रूप दे देते थे। जैसे कबीरदास की बुक थी बीजक। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीरदास के मरने के बाद उनके शिष्यों ने एक बुक के रूप में कंपाइल कर दिया। जैसे गुरु नानक की गुरुवाणियाँ, सभी धार्मिक संप्रदायों आपको ऐसे बुक मिलेंगे जिसमें इन कवियों की जो उपदेश थे, इन कवियों की जो रचनाएं थी, इन कवियों के जो पोएम्स थे, सभी को एक साथ कंपाइल करके मृत्यु के बाद उनको एक 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 अविरल निरंतर चलने वाली परंपरा बना लिया गया। ये परंपराएं एक लंबे समय तक चली। इनका विस्तार विचारों के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उन संदिग्ध, अनावश्यक लगे हुए उन या तो जो ऐसी वस्तुएं थी जो समाज के लिए अनुपयोगी थी, अनुपयुक्त थी, या तो उनको किनारे कर दिया गया या तो उनमें सुधार किया गया। संतों ने सीधा चूट किया इन चीज़ों पे। When we will discuss about the teaching of Kabir, where we have discussed that
how Kabir tried to remove the social evils, how the Nanak tried to maintain the dignity of labor and tried to maintain the dignity of society. He also opposed the discriminations. He also opposed the casteism, and he focused bhakti. He focused the knowledge. That is the very important things. इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदायों में से जो संप्रदाय के रूप में बन गए, रिलीजियस सेक्ट के रूप में बन गए, जो फॉलोअर्स थे उनके, उनकी मृत्यु के बाद, संतों की मृत्यु के बाद एक सेक्ट बन गया, रैदासिया संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय, सिख नानकपंथी संप्रदाय, और इस तरह की तमाम सारे संप्रदाय उन वैदिक उन धार्मिक संतों के आधार पर बाद में बने। इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सभी को हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। वी विल रीड इन दिस चैप्टर। In this chapter also we will read about the seven Ainar and Vaishnava Alvar and their role. We will discuss that first time when Bhakti emerged and what is the relation between the Bhakti and Sufi. What is Sufism and how he affected the Indian society. How many sects in the Sufism also. Meaning of Sufism. Meaning of Pir. Meaning of Mursid. Meaning of Basara, Besara, Sariyat, Sheikh, Qawwali, and these type of all things we will discuss in this chapter. And at last we will discuss the teaching of Kabir, teaching of Nanak and teaching of Mirabai. This is the very important things you have to consider about all things. This chapter is important for your board examination. At least one or two questions आते ही आते हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, इसलिए आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर 4, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी informed you the many more information about that this chapter. The first topic is music. But before we start this topic, I would like to inform you the what is the meaning of bhakti. भक्ति क्या होती है? It is based on devotion and dedication towards God. भगवान की तरफ पूर्ण समर्पण की भावना रखना ही भक्ति है। अगर भक्ति को समझना है, भक्ति मूवमेंट को समझना है, भक्ति ट्रेडिशंस को समझना है, तो आपको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि हिंदू धर्म के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द 3 मेन एम ऑफ द, और व्हाट इज द मेन एम ऑफ द हिंदू रिलीजन और वैदिक रिलीजन। No doubt, it is moksha. Moksha is very important element in the Indian philosophy. मोक्ष प्राप्त करने के लिए भारतीय धार्मिक साहित्यों में, in the Indian religious text, there are 3 paths. If you follow that, we can attain the moksha. First, that is knowledge. Second, that is the duties, karma. And third, that is bhakti. The duties or hymns are extreme practices that is based on Vedas, where we have seen that there were so many sacrifices practices in society. It was very difficult way.
In the later phase, I have also discussed with you that the sacrifices become very precious. The common people, they were not capable, or they have no capacity to practice the sacrifices, because the sacrifices become so costly. And second thing is the knowledge, that is based on Upanishad. Knowledge, no doubt to say that knowledge is a great path, but it is so difficult. As you know that in Indian society during 8th to 18th century, 90 to 95% or 95 to 97% they were fully illiterate. They don't know about that what is the textual knowledge. They were unable to read and write. They were unable to gain the knowledge with the help of Vedic text like Upanishad, like Ved. So this path is difficult. And third, that was bhakti. Bhakti was very easy medium. In bhakti, there is no medium of, there is no medium to connect God. There is no mediator. Fully mediator is absent here. It's depend upon your devotion. It depend upon your dedication towards God. That is bhakti. So that's why bhakti is a very, very easy way to attain God, to attain, to interact with God. That is the very important. That is bhakti. And one more thing is that bhakti, according to historian, first time origin in the southern part of India during 7th century AD. Bhakti traditions started by first time Ramanuj. Ramanuj was very famous religious saint who was follower of Lord Vishnu, who started the Visishtadvait, and then after it was gradually expand the whole Indian continent. कहा भी गया है शास्त्रों में, we have the finest example, we have that we are saying it. What? The भक्ति उपजी द्रविड़ी लाए रामानंद, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तदीप नौखंड। उत्पन्ना द्रविड़ साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णाम गता। उत्पन्ना द्रविड़म साह वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरम जीर्णाम गता। कर्नाटक से कह रहा है दक्षिण से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में विकसित हुई और फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र से होते हुए उत्तर भारत की तरफ पहुंची। और जो दूसरा मैंने बोला उसमें कहा गया कि किस तरीके से भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद अष्टदीप नौ, किस तरीके से द्रविड़ भाषा में दक्षिण में भक्ति का उत्थान दिखाई देता है और फिर ये धीरे धीरे महाराष्ट्र कर्नाटक महाराष्ट्र होते हुए उत्तर भारत की तरफ पहुंचा। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति परंपरा के महान संवाहक के रूप में जाने जाते हैं। ये वही रामानंद है जिनके से कबीर, रैदास जैसे महान संत हुए। रामानंद ने कभी भी जातिगत आधार पर कोई विभेद नहीं किया। रामानंद के शिष्यों में मोची, चमार, जुलाहा, दर्जी, डाकू जैसे लोग उनके शिष्य बने और इन्होंने भक्ति
के माध्यम से अपने परम पद को प्राप्त किया। रैदास, दैट इज द वेरी प्रोमिनेंट नेम इन द भक्ति ट्रेडिशंस। कबीर, you can take the name. Now that time he was called the great social reformer. रैदास also। इस तरीके से भक्ति का पूरा विस्तार हुआ। अब उन चीज़ों को देखते हैं। लेट्स कम योर टॉपिक फर्स्ट, दैट इज द मॉसिक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस। Perhaps the most striking feature of the phase is the increasing the visibility of wide range of god and goddess in sculpture as well as in text. At one level, the indicates the communicated even extended worship on the major details, Vishnu, Shiva, and goddess, each of whom was visualized in the variety of forms. Author want to inform you that if you will minutely observe about that northern part of India, then you can find the worship of Lord Vishnu, worship of Lord Shiva, and the various deities. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो समय था जब सबसे प्रभावी विशेषताओं में साहित्य और मूर्तिकला दोनों में अनेक तरह के देवी देवताओं अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं, अधिकाधिक दिखाई देते हैं। छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटे छोटे मंदिर, फिर बाद में विशाल मंदिर बनने शुरू हो चुके थे। और इन पूजा पद्धतियों में जिस भगवान की पूजा की गई उसमें महत्वपूर्ण देवी देवता के रूप में भगवान विष्णु, भगवान शिव और अनेक देवी देवता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया इन पूजा पद्धतियों। अब यहाँ पे इन पूजा पद्धतियों के आधार पे सोसाइटी को क्लियरली दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक वो वर्ग, वन, तो आई मीन टू से दैट बिहाफ ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस we can separate the society into two parts. First, the upper part of the society, and second, the lower state. Lower state, it means the persons who believe in the folk deities, and the upper state, the persons who believe in the what? The Brahmanical deities, Brahmanical gods. Okay, that is the matter of the conflicts and disputes. But we have seen the very liberal way the both upper class and lower class emerged the faith and beliefs, religious faith and beliefs, without any discrimination. They accepted their own sacred practices in their own prayers, is their own worship. एक दूसरे ने अपने विश्वासों में, अपने धार्मिक परंपराओं में दोनों लोगों ने एक दूसरे की बातों को बड़ी उदारता के साथ स्वीकार किया। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। क्वेश्चन अराइज इन एग्जाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट? इंटीग्रेशन मतलब समन्वय, दोनों के बीच समन्वय कैसे बना। जैसे अपर क्लास के लोग ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के आधार पे जो इमिनेंट और प्रोमिनेंट डिटीज़ थे, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, इस तरह के अनेक विष्णु, इंद्र, सोम, वरुण जैसे देवी देवताओं की उपासना करते थे। जबकि लोअर स्टेटस के लोग, ये लोग वो थे जो सर्वेंट रहे होंगे, दास रहे होंगे, जंगलों में रहने वाले लोग होंगे, वर्कर्स होंगे, इन लोगों के अपने स्थानीय देवी देवता रहे होंगे। फोक डिटीज़, if you will minutely observe around with you, then you can find the local deities. छोटे छोटे देवताओं को आप देख लेंगे, ग्राम स्तर पे देवताओं को देख लेंगे। It was, this practice is also running on now that time in society. We have seen the local deities on the village level, on the town level. तो जो दो मान्यताएं थी, इन दो मान्यताओं ने आपस में समन्वय स्थापित किया।
बड़े वर्ग के लोगों ने छोटे वर्ग के देवताओं को एक्सेप्ट कर लिया और छोटे वर्ग के लोगों ने बड़े वर्ग के देवताओं को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, सबको मान्यता दे दी गई। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। Point 1.1, the integration of cult. The historians who have tried to understand these developments suggested that there were at least two processes at work. One was the process of the disseminating the Brahminical ideas. This is exemplified by the composition, compilation, and the preservation of the Puranic text in the simple Sanskrit verses. Explicitly, the meant by accessibility of the women Sudras, who were generally excluded from the Vedic learning at the same time. Where was the second process at work, that the Brahmins accepting the reworking of the beliefs and practices of these and other social categories. In fact, many beliefs, the practices were shaped through the continuous dialogue between what the sociologists have described as the great Sanskritic Puranic traditions and the little traditions throughout the land. One of the most striking example of his process is evident at Puri, Orissa, where the principal deities was identified by the 12th century as Jagannath, literally the Lord of the world from of Vishnu. कहता है कि इतिहासकार, हिस्टोरियंस इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ये हिस्टोरियन का विश्वास है, सजेशन है, बिलीव है कि इंडिया में दो तरह की व्यवस्थाएं थी। एक जिसमें ब्राह्मणी विचारधारा के लोग थे, एक जिसमें वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट के आधार पे अपर क्लास की डिटीज़ की पूजा की जाती थी। इनका प्रसार पौराणिक ग्रंथों, रचना, संकलन, उनके परिरक्षण और परिवर्धन पे हुआ था। उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो संस्कृत में थे। वैदिक विद्या उनका प्रमुख बेस था पूजा पद्धतियों का। और वहीं दूसरी तरफ समाज का वो वर्ग जो वैदिक विद्या से पूरी तरीके से विहीन था, इनके पास वैदिक नॉलेज नहीं थी, जैसे स्त्रियां, जैसे शूद्र, जैसे लोअर क्लास सोसाइटी ऑफ द पीपुल। और इन लोगों के लिए इस काल में जो पूजा की पद्धतियां थी वो अपर क्लास से टोटली भिन्न थी, डिफरेंट थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियां और शूद्रों द्वारा जो स्टार्ट किया गया था पूजा पद्धति, ये सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, उसे एक नया रूप प्रदान किया गया, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया, थोड़े एक परिवर्तित रूप में। और यही उनके धर्म, यही इस रिलीजियस जो बिलीव्स थी इंडियन कॉन्टिनेंट की, इसको एक नई शक्ति प्रदान करता है। दोनों विचारधाराओं का मर्ज हो जाना, ग्रेट ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशंस एक साथ आ जाना। इतिहासकार और समाजशास्त्रियों का मानना था कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियाँ जो ग्रेट ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशन के रूप में थी। ग्रेट ट्रेडिशंस में संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लिटिल ट्रेडिशंस में तो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था पूजा पद्धति की, वो दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। और सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल इसका है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अगर आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर को देखें तो वहाँ पे आपको क्लियर ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशंस को एक साथ मर्ज होते हुए दिखाई देगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यदि आप देखेंगे जो पिक है, अभी मैं आपको पिक शो करूँगा, उस पिक में 6.2 और 4.2 दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा डिफरेंट दिखेगा। दोनों पिक जो गॉड का शेप है, लॉर्ड विष्णु का जो शेप है, दोनों जगह डिफरेंट है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो विष्णु के शेप को बनाया गया है वो टोटल शेप लिटिल ट्रेडिशंस की फेथ और बिलीफ पे डिपेंड है। वहाँ पे मूर्तियाँ भी लिटिल ट्रेडिशंस के प्रैक्टिस के आधार पे बनाई जा रही हैं। लकड़ियों की प्रतिमाएं बनती हैं। पूरी की रथ यात्रा के बारे में आपको समझना चाहिए। लकड़ियों का पूरा बना हुआ, लकड़ी से बलभद्र, लकड़ी से सुभद्रा और लकड़ी से कृष्ण की आकृति बनाई जाती है। उनके शेप को देखिए, उनके आकार को देखिए, स्वरूप को देखिए। वो स्वरूप टोटली आप जिस भगवान विष्णु की कल्पना आपके मन में होगी, मस्तिष्क में होगी, उससे टोटली विभिन्न तरीके से दिखाई देता है। और साथ साथ लकड़ी की बनी हुई प्रतिमाएं पूजा के लिए प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। अभी अगर आप अपडेट होंगे, डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो आपको पता चलेगा इस कोरोना ये जो पैंडेमिक महामारी चल रही है उसमें भी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा की तैयारियां चल रही, थोड़े बहुत रुकावटों के साथ। तो आप उन चीज़ों को भी देखिए, समझिए, और तब आपको समझ में आएगा ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन के बीच का क्या संबंध है और कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। इस उदाहरण में स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजातियों के विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है, जो विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न है। ये जो इंटीग्रेशन का एक सबसे अच्छा उदाहरण आप जो देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवताओं में के साथ साथ देवियों में देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है। कभी कभी ये लक्ष्मी के रूप में है, कभी कभी विष्णु की पत्नी के रूप में है, कभी शिव की पत्नी के रूप में पार्वती हैं, और इस तरह के तमाम देवियों की संकल्पना की गई पत्थरों पे सिंदूर पोत करके। पत्थरों पे सिंदूर पोतना, दैट इज द लिटिल ट्रेडिशन, and it changed in the new form as a Parvati or as a goddess Lakshmi. That is, this similarity show that this is the great tradition. ये देवी देवताओं के नाम अपर ट्रेडिशन के हैं, ग्रेट ट्रेडिशन के हैं, लेकिन पत्थरों पे जो प्रतिमाओं पे पेंटिंग सिंदूर पोता जा रहा है ये लिटिल ट्रेडिशंस की है। और एक अच्छा समन्वय दिखता है भारतीय परिवेश में, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशंस के समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट को। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. Okay, let us discuss what is the meaning of great and little traditions. That is the very important. You should understand that what is the meaning of great traditions and what is the meaning of little traditions. दोनों के बीच क्या अंतर है ये आपको जानना चाहिए. ग्रेट ट्रेडिशंस क्या है और लिटिल ट्रेडिशंस क्या है. तो इसके लिए the term great and little traditions were coined by a sociologist named Robert Redfield in the 12th century to describe the cultural practices of peasant society. He found the peasants observed the ritual and customs that emanated from the dominant social categories, including priests and rulers. These he classified as a part of the great traditions. At the same time, peasants also followed the local practices that did not necessarily correspond with those of the great traditions. These he included within the categories of the little traditions. He also noticed that both great and the little traditions changed over time through a process of interactions. While his scholars accepted the significance of these categories and the process, they are often the unportable within the hierarchy suggested by the terms great and little. The use of quotation mark for the great and little traditions. Dear student, we will discuss this topic in the next video. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.